सो आता हे मेमरी इम्प्रुव्हमेंट टेक्निक म्हणजे नेमकं काय? हाऊ कॅन वी इम्प्रूव्ह अवर मेमरी? एखादी गोष्ट जी आपण शिकलेलो आहोत, ती गोष्ट आपल्या लक्षात राहण्यासाठी तुम्ही काय-काय करतात सांगाल का कोणी? हाऊ यू स्टोअर, हाऊ यू रिकॉल पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन? येस, टेल मी. सर, आपण त्या गोष्टीचं सपोज फॉर एक्झाम्पल आता स्टडी रिलेटेड असेल, हां. तर मग आपण त्याचे नोट्स काढून आणि ओके. मग त्याला व्हिज्युअलाइज करून त्या हं, गोष्टींना हं. मग त्याच्यावर फोकस ठेवून आणि जस्ट सपोज एखादी कन्सेप्टच असेल तर मग त्या कन्सेप्टच्या पूर्ण डेप्थ मध्ये जाऊन त्याची हिस्ट्री वगैरे काढून आणि रिहर्स करून म्हणजे सारखं वाचून किंवा मग एक पेजवर लिहून आणि मग आपण असं म्हणतो येस, ना की येस. उद्या मला रिव्हिजन करायचं याचं हं. असं. Correct. Yes. Now, see, these are various aspects of memory retention or memory improvement, like mnemonic, using imagery, method of loci, वेगवेगळे नावं आहेत त्याला. Even organization, as we have discussed with the way we store our cupboard, the way we organize our notes, self-reference, sometimes even external aids like we use reminder in mobile, that is external memory aids. Some may have a habit to write a diary or to make a to-do list. Even practice, it is also equally important. And multimodal approach, meta memory. The first thing is, with research, it has been proven that effective note taking, it has been proven the best memory improvement technique. Effective note taking. Not every detail, sir, ma'am, जो कुछ भी बोलते हैं वो सब कुछ word to word लिखना, it doesn't mean, but only with references like running notes in shorthand form with her references. Listening carefully, it is most important. And even interesting part is, now suppose अगर क्लास या फिर लेक्चर में अगर किसने कुछ जोक ऐसे क्रैक किया उस वक्त, we can even write it down in brief, सिर्फ हेडिंग, XYZ फ्रेंड ने ये जोक क्रैक किया और वो लिख दिया वहां पे. At the time of exam, at the time of revision, if you have such type of appropriate habit of effective note taking, then only by simply looking that particular pages, you may recall the entire lecture, entire class, कि हाँ उस क्लास में सर ने कैसे सिखाया था, उन्होंने कौन से एग्जाम्पल्स दिए थे, फिर कैसे जोक्स क्रैक हुए, फिर क्या हमने डिस्कस किया था, उसके ऊपर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, एवरीथिंग क्या हुआ था और कैसे हुआ था, उस दिन क्या था, कैसे, एवरीथिंग, बिकॉज on one page we have summarizing, effective note taking. It is mentioned in the book, that is Understanding Psychology by Feldman. So this says that develop your own framework while making effective note taking. This is the first technique of retention, how to retain maximum information and that too appropriately. Second, another thing is mnemonic devices. Now, it is a Latin term, mnemonic. Mnemonic means what? Storage of memory. So for that, visual imagery, the visualization. After a week, after a month, so we have our final exams. उसके लिए कैसे प्रिपरेशन होगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सीक्वेंस क्या होगा, everything. And other things, now step by step, we are going to study detail. First one is, see,
keyword method. Keyword method in the sense mental imagery, imagination for learning unfamiliar vocabulary items. Like in short, to learn a new language. Now, do you mean, do you know the meaning of Yentu? Yentu का meaning मालूम है? No, No, sir. sir. No. Okay. In Kannada language, Yentu means number 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, how can we learn? Yentu में भी ट है और हिंदी और मराठी में भी जो 8 कहते हैं उसमें भी ट ठ है. कीवर्ड इसमें ये उसमें वो और मीनिंग सेम. रोडिला एंड नी, रोडियो एंड नी, इसके ऊपर जिस तरीके से ये इंसान बैठा है, ये एसोसिएशन करके ये कीवर्ड मेथड से स्पेनिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज इट कैन बी लर्न. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. मग एक एक्झाम्पल तुम्ही काय द्याल? सर जसं आपण आता याचं केलं तो टॉपिक होता द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग अप्रोच. तर येस आपण त्याचा एक शॉर्ट फॉर्म केलं LOP. येस. त्याच प्रकारे आपण म्हणजे ते कीवर्ड मेथड यूज करून आपण तसं यूज हा केलं. हा, करेक्ट करेक्ट. अजून एक एक्झाम्पल निकिता जेनल. डेली म्हणजे हा. बोलण्याच्या याच्यामध्ये पण आपण यूज करतो की टॉक यू लेटर, सी यू सूनचं ते शॉर्ट फॉर्म आपण यूज करतो, ते कीवर्ड मेथडच येईल ना सर? कीवर्ड मेथड ते फर्स्ट लेटर टेक्निक होईल. ते कीवर्ड नाही. कीवर्ड म्हणजे काय तर इम्पॉर्टंट वर्ड. TYSM, थँक्यू सो मच, म्हणजे ते फर्स्ट लेटर टेक्निक. थँक्यू चा टी घेतला, यू चा वाय घेतला, सो चा एस घेतला, मच चा एम, TYSM. Keyword means important word. Any other example? Anyone? सर अजून एक आहे. हा हा. फॉर एक्झाम्पल जर आपल्याला एखादं लेदरचं जॅकेट घ्यायचं असेल, प्रॉपर हो. हा हा. जॅकेट घ्यायचं असेल आणि आपण गुगलवर सर्च केलं, सपोज फॉर एक्झाम्पल न्यू लेदर काय म्हणायचं होतं, अ लेदर जॅकेट फॉर मेन्स और विमेन्स. मग त्या अकॉर्डिंग खाली खूप सारे ऑप्शन, म्हणजे जस्ट एक वर्ड यूज केलं आणि मग त्याच्यानंतर आपल्याला हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस भेटल्या. ओके ओके ओके. Keyword method. Second thing is loci. Location चा हा शॉर्ट फॉर्म आहे. Loci. Whatever you want to recall, arrange those items with some particular known locations in sequence. जो कुछ आपको याद रखना है वो सारी चीजें एक पर्टिकुलर लोकेशन की सीरीज में एसोसिएट करो और फिर ऑर्गेनाइज करो. A memory technique strategy in which items to be learned, they are associated with a series of physical locations. Now for example, books, sweets, then paying mobile bills, and another thing is to book a ticket. ये 4 काम मुझे कल करने हैं. अगर ये 4 काम, ये 4 चीजें अगर मुझे करनी है तो फ्रॉम माय होम
द फर्स्ट थिंग इट कम्स टू कॉलेज. अच्छा, कॉलेज में क्या होता है, बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स का यूज है. तो कॉलेज एंड बुक, आई हैव पेयर द बुक विद द लोकेशन ऑफ कॉलेज. उसके बाद वो सागर स्वीट्स आता है. आई हैव टू टेक सम स्वीट. So sweet and Sagar Sweets, I have paired up. The third location is BSNL Tower. I have to pay a bill for it. So BSNL का bill pay करना है मुझे. So BSNL Tower and bill payment, I have paired up. And then it comes Thakkar Bazaar. I have to book a ticket from that particular location. So I have associated each one particular to be learned, to be remembered with some particular physical locations. तो अब मुझे कुछ एक लिस्ट हाथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है. ओनली बाय सीइंग द लोकेशंस, ओनली बाय रिमेम्बरिंग द लोकेशन, आई कैन इजीली रिकॉल दैट व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू. और ये सारी चीजें अब किसी सीक्वेंस में है, तो आगे पीछे नहीं होगा अभी. तो पहले ऐसे कैनरा कॉर्नर पे गया और फिर याद आया कि अरे नहीं बुक्स लेने हैं, तो फिर कॉलेज पे आया. और फिर बीच में याद आया कि अरे हाँ टिकट भी बुक करना है, तो ठक्कर में. अरे हाँ नहीं स्वीट्स तो रह गए, तो फिर से रिवर्स में आए. नो, नाउ कॉलेज, स्वीट्स, टॉवर एंड ठक्कर बाजार, they all are in sequence. एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एंड द फोर्थ. तो एक ही ट्रिप में मेरी सारी चीजें हो गई, मेरे सारे काम हो गए. होता है फॉलो? हो सर. हो Yes. सर. Remember the last point, that is visualizing a series of places in a specific sequence. Only the provided condition is you must be well acquainted, well versed with those locations. This is the only basic condition which they have. Organization, as we have discussed. ये दिख रहा है सामने? Yes, sir. Within 10 seconds it will be disappear and you have to recall it. Okay, बताओ क्या था वो, और सीक्वेंस में बताओ. हाँ, तो मिडिल के बाद KKW था और JKLM था और एंडिंग हाँ. का SRK था. यस. ओके. सर स्टार्टिंग मध्ये काही CBB काहीतरी असं होतं. सर स्टार्टिंगला CBS होतं. स्टार्टिंगला सोपं गेलं, त्याच्यानंतर थोडं थोडं. अच्छा. स्टार्टिंगला CBS होतं, एवढं लक्षात आहे मला. पुढे BB असं काही. नाउ सपोज, अच्छा नाउ सपोज अब ये इतने सारे जो कुछ है लेटर्स, उसी को ही अगर हम ऐसा डिवाइड करेंगे तो CBS, BBC, KKW, JKLM, CLG, RD, SRK. Now, which particular aspect it is easy to recall and to study? The first one or the third one? थर्ड वन. थर्ड वन. Why? ये और ये तो सेम है. बट ह्या प्रत्येक जे स्लॉट्स आहे हे कुठेतरी आपण कनेक्ट करतोय. लाईक वी नो CBS, BBC, KKW, कॉलेज Okay. रोड, SRK, असं JKLM. हाँ, राइट. एंड अनदर थिंग इज ये सारा सीक्वेंस में है, बट हमने यहाँ पे ग्रुप किया है इफ ऑफ 3 और 2 वर्ड्स, लेटर्स रादर. ते ग्रुप्स केल्यामुळे आपल्याला लक्षात ठेवायला सोपं जातं. सेम थिंग विथ दिस. ये इतना नंबर
उसके अलावा अच्छा 1857, 1600 बेसिक एग्जाम्पल। आप में से कोई भी एक आपका फोन नंबर बताएगा प्लीज अभी इमीडिएटली। येस सर. हाउ यू टेल युअर नंबर? सर ब्रेक करून त्याला कसं? हा 8806 हाँ हाँ 786 आणि 680. करेक्ट करेक्ट। तो ये बताने में और फिर याद करने में भी इट बिकम्स क्वाइट इजी, 88, 706 ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अगर किसी ने कहा कि अच्छा हाँ याद करो 989061466667, अरे अच्छा 9890614667 0253 ये कोड हो गया, फिर उसके बाद का XYZ ये लैंडलाइन नंबर। दिस इज कॉल्ड एज चंकिंग, another memory improvement technique or memory retention acquisition technique, that is chunking. Chunking means what? String of letters or numbers grouping together is what is chunking. Chunking म्हणजे group करना। कितना भी बड़ा लंबा कोई एक एस्पेक्ट हो, इधर नंबर या फिर लेटर्स या फिर वर्ड्स वगैरह कुछ भी, बट अगर उस चीज को हम ग्रुप्स में करते हैं, डिवाइड करते हैं, देन इट विल बी इजी फॉर अस टू रिमेम्बर, राइट? हो येस सर. येस सर. Another part of organization is, see, ये political science का है, but example means the concept it is same again. Parliament, it consists of two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. लोक सभा के नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, उनके फंक्शंस क्या है, राज्यसभा क्या है, उसके नंबर ऑफ सीट्स एंड उसके फंक्शंस। तो एक ही पेज पे पार्लियामेंट ये कंसेप्ट हो गई, 1 2 3 4 फंक्शंस, नंबर ऑफ सीट्स इधर 588, उधर XYZ एक जो कुछ होके वो, एंड डन। मेमोरी रिटेंशन एक्विजिशन, मेमोरी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, अगेन हमने जैसे ह्यूमन परसों भी डिस्कस किया था कल परसों, दैट इज अ फैमिली ट्री, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, रिलायबिलिटी, देन वैलिडिटी, देन नॉर्म्स। रिलायबिलिटी के नीचे स्प्लिट हाफ, टेस्ट रिटेस्ट, इंटर स्कोरर। अच्छा वैलिडिटी फिर 1 2 3 4, नॉर्म्स 1 2 3 4, और अगर कुछ है तो वो एक ही पेज पे पूरा पेपर, पूरे टर्म का वो स्टडी हो गया कवर। हाउ टू मेक नोट्स, how to organize our study material, this is the basic skill. Some students they are so intelligent but they are not smart. वो सिर्फ बुक पढ़ते बैठेंगे, बस 3 बार 4 बार लिखते। हार्ड वर्क इट इज डिफरेंट एंड डोंकी वर्क इट इज डिफरेंट एंड स्मार्ट वर्क इट इज डिफरेंट। तीनों चीजें अलग अलग है। The combination of hard work and smart work it is required nowadays, essential. But that doesn't mean कि डोंकी वर्क करो बेवजह बस। अच्छा पार्लियामेंट के ऊपर बुक में दिया है 4 पेजेस, तो पेन लो, बुक लो, हेडफोन डालो और बस लिखते रहो 3 बार। In the Constitution of India, the Parliament consists of 2 houses. The one which is known as Lok Sabha, the House of People. Another name for this is, बेवजह आधा पेज इसी में ही गया। स्मार्ट वर्क, हाँ ये कैसे करना है इसके लिए हार्ड वर्क है, उसके लिए तो एटलीस्ट एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा वो बुक, वो कंटेंट, वो नोट्स। बट आफ्टर रीडिंग द कंटेंट in our own words, how can we frame it? That is most important. Understood? येस सर. येस सर. Okay. See, और वेरिएशंस देखो इस पे, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ही है। सर सायकोलॉजी ब्लँक आहे स्क्रीन. अजून पण ब्लँक आहे। दिसतीये मॅम.
मला पे- ब्लँक दिसतंय ते. मग एकदा परत जॉईन करते का तू? हो ठीक आहे, करते सर. हा हा. हे प्रेसिडेंटच दिसतंय ना तुम्हाला, पूजा, निकिता? हो हो सर. सर. Yes, yes, correct. Psychology and its fields: child psychology, school psychology, counseling, personality, industrial, even developmental, सारे नोट्स एक ही पेज में. Functions of leader 1, 2, 3, 4, 5. Done. Organization of our study, organization of our notes. This is the most important part. Another thing is hierarchy. From top to bottom. The peon, subordinate, junior, assistant, associate, HOD, the vice principal, the dean, the secretary, in charge, registrar, everybody. और कोई सीक्वेंस में पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन. फैमिली ट्री, हायरार्की के अलग अलग वेरिएशंस है. लाइक मैस्लोस थ्योरी, नीड हायरार्की, द बॉटम लेवल नीड एंड द टॉप मोस्ट नीड. वो ट्रायंगल जो है, हायरार्की वाला ट्रायंगल. Physiological need, safety need, love and belongingness, self-esteem, self-respect, and then self-actualization. There are so much techniques in psychology to study to enhance our memory process, retention process. And then it comes, yes, well known, that it's first letter technique. Even in Marathi, like rainbow color के नेम, ताना पिही निपाजा, माहिती आहे निकिता? हॅलो हेलो निकिता परदेशी. येस सर. हा हा. रेनबो कलर्स आपण कसे लक्षात ठेवतो? ताना पिही निपाजा म्हणजे नेमकं काय? तांबडा, नारंगी, हा हा. असं ब्ला ब्ला ब्ला. ब्ला 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 ब्ला. सातच तर आहेत. सातच तर आहेत. ताना पी म्हणजे पिवळा, हा, ताना पिही. निळा, निळा, हिरवा, हा, तानापी, जांभळा, ताना पिही हिरवा, ही निपाजा. निळा, जांभळा, पा म्हणजे पांढरा, जा म्हणजे जांभळा. जांभळा. हा. Another as a part of joke, but yes, even having the same relevance, that is चिंटू की माँ चिंटू के पापा को हर रोज सुबह जब वो ऑफिस को जाते थे तब चैतन्य चटई. काय काय ते मूवी मधलं आहे सर ऍक्च्युली. चंदू की जाते ने चंदू की जाते. नहीं 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 चौको, ते नहीं चांदनी चौक. नहीं 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 ते नहीं. ये कैसा है कि चिंटू की माँ चिंटू के जो पापा है वो जब भी कभी ऑफिस को जाते थे तो ये चिंटू की माँ ऐसे विंडो में आके सबके सामने ऐसे जोर से हर रोज कहते थे कि चिंटू के पापा तुम्ही पेरूचा पापा घेतला का, पेरूचा पापा घेतला का. तो ये लोगों को थोड़ा ऑड लगता था कि ये ऐसे कैसे बात कर रहे हैं और मतलब क्या है. सो देन शी सेड कि अलग कुछ नहीं है. पेरूचा पापा इन द सेंस पेन. पे स्टैंड्स फॉर पेन. रू स्टैंड्स फॉर रुमाल, handkerchiefs. चा स्टैंड्स फॉर चावी. पेरूचा पापा.
काय हा पासबुक आणि पाकिट, पेरूचा पापा, फर्स्ट लेटर टेक्निक. Then in counseling, we use this term, that is setting a SMART goal. SMART in the sense what? Specific, measurable, action oriented, attainable, achievable. R stands for realistic and T stands for time bound, that is SMART goal. So likewise also we can prepare our notes accordingly. Of course, it requires the creativity, our interest, everything. Are you getting? Are you following? Yes, sir. Yes, sir. Yes, correct. And ये तो एकदम easy to understand है. External memory aids, so list करणं किंवा मोबाईल मधला रिमाइंडर असेल, बुकमार्क असेल, इम्पॉर्टंट कंसेप्ट which we feel कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है तो वो बुक में कहाँ पे है, कैसे बुकमार्क. फिर ब्लू कलर का, येलो कलर का, ऑरेंज कलर का. लाइकवाइज लाइक ऑफिसर्स दे हैव असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स याद में रखते हैं सब कुछ. सीएम का असिस्टेंट, पीए पर्सनल असिस्टेंट. एंड लाइब्रेरी में क्या है? लाइब्रेरी में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है. किस इंसान ने कौन सा बुक कब लिया था, कब उसने वापस देना चाहिए, एवरीथिंग इट हैज बीन स्टोर्ड. सो इट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स एंड मेंटल वर्क अगेन. But the most important thing is how we use and how they work. It is most tricky part. It doesn't mean that we should always rely or depend on external memory aids. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, and the last thing is for memory improvement technique, that is practice. Albert Ellis, once he was asked that how you work so efficiently, he said, this is my principle. Work, 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 practice, practice, practice. In English also, as we know, it says that the practice, it makes man perfect. The more you practice, the more you read, the more you revise your study, the more it will enhance your retention level, especially in exam. The tables, even formulas for 10th or 12th, poems, shloks, notes, points, everything. In any field, this practice, it is most important. Minimum 400 hours of practice, it should be there. 400 hours. And plus BA, MA degree, then only we will be able to counsel other one with more appropriately, with more responsibility. So, and again, in that also total time hypothesis. ऐसा नहीं है कि हमने 4 घंटे का 400 घंटे का कुछ किया, वो 400 घंटे भी हमने कैसे किए हैं, इट इज इम्पोर्टेंट. अगेन elaborative, how we have invested those 400 hours in that particular field, that is most important. And that's why our interest, it depends on our approach. हमारा अप्रोच क्या है उस वक्त. सिर्फ नाम के लिए 400 hours है, then again it will be superficial approach. It won't be considered as a deep level processing approach. So likewise, we have covered our chapter for learning and memory. Both the things. This is the favorite chapter for those, for experts in this field, because इसमें maximum content है MCQ के questions frame करने का. So you can't skip this chapter.
एंड इट इज इक्वली स्कोरिंग वन। अगर ये चैप्टर का स्टडी अच्छे से है तो